Hello student, welcome to my class, and today we are going to discuss about these topics that I told earlier under the unit of magnetic effect of electric current. Okay, so let's start with the first topic without wasting the time, torque on a loop. Listen student, whenever we have discussed about the different type of magnetic source, we have discussed that these sources are current carrying source. As I told in my previous class that the source of magnetic field are, number one is the current carrying wire, or you can say it as a movable charge, and the second is the magnet. Okay, so these two are the source of magnetic field. In the next unit we will discuss about magnets. Okay, but from the earlier classes you knew this thing that all the magnets are dipole. That means there is there are two polarities in any magnet. One is north and one is south polarity. So why this is so that we cannot discuss about the polarity of current carrying wire? Are you getting it? So we have discussed about straight current carrying wire, we have discussed about circular loop that as a magnetic source, magnetic field source. We have discussed about finite length wire, infinite length wire case, inside the wire and outside the wire too. So we have discussed so many kind of structure. So we are going to discuss that whether these current carrying sources are dipole or single pole. I am sure that the last result must come with a dipole. That means they must have the north and south polarity. That we are going to prove. Got it? So let's start with this topic, torque on a loop. अगर हम टॉर्क प्रूफ कर देते हैं तो हम इसकी पोलैरिटी, इसके बाद जो एक न्यू क्वांटिटी यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाली है और उस क्वांटिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उस क्वांटिटी का डाइपोल से क्या लिंक है. ठीक है, सो लेट्स वेट एंड वॉच and be with me mentally as well as physically. Note down each and every points which I am going to tell you. I have not drawn this figure. I will draw it in front of you so that in examination whenever this topic will come you can draw the figure easily. Okay, so what we have to do, we are taking the first topic, you have to draw a magnet. First of all, this one is a magnet having north and south polarity, and a rectangular coil. This one is a rectangular coil placed in between the magnetic field of this magnet. ठीक है, यहाँ पर इस rectangular coil को हमने एक current carrying source से connect कर दिया है, positive negative. So current is moving here. Here the coil name we are giving the name A B C D. So current is flowing in this coil in the direction A, B, C, D. यहाँ से current आएगी. So this one is the direction of current. Got it? अब यहाँ पे आप लिख लो इसे. I current flow कर रही है in the direction A, B, C, D. So what will happen? First of all, from the previous knowledge we will discuss it. This current carrying wire is placed in the magnetic field. This is the direction of magnetic field represented by B from north pole to south pole. Magnet यहाँ पर magnetic field को generate कर रहा होगा. ठीक है, तो whenever a current carrying object, any kind of structure we can take, so whenever a current carrying object is placed in a magnetic field, a force is applied over that object and that force is called Lorentz force. We have discussed it. Okay, so there is a Lorentz force over this AB arm, BC arm, CD arm and DA arm. So these are the arm, these are called arm. AB, this one is AB, this one is a rectangular coil. We can take the length of this wire. AB and CD are the parallel length. So AB and CD, this is equal to, let it be B breadth. And BC and AD, these are the length of this rectangular coil.
on the basis of front view we can say it, this is the length of this rectangular coil. स्क्वायर लग रही है लेकिन स्क्वायर नहीं लेना है, आपने रेक्टेंगुलर लेना है, ठीक है। स्क्वायर लेंगे तो केस थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, उसमें स्क्वायर टर्म आ जाएगा और वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस not a square term here, so we have taken it as a rectangular coil. Okay, so this one is the case. Now let us apply this Lorentz force and Fleming left hand rule here. In which manner we will apply? FMC I told you earlier in my very first video based on magnetic effect of electric current. There are three fingers, we have placed it mutually perpendicular to each other, and this thumb indicates the direction of force, the first finger indicates the direction of magnetic field, and the second finger indicates the direction of current. We have discussed, I told about FMC. FMC means what? यहाँ पे मैं mention कर दे रही हूँ इसे. F means father, M means mother, C means child. Okay, so here whenever we are applying here, if the first finger indicates the direction of magnetic field, the middle finger indicates the direction of current, then the thumb indicates the direction of force. So we are going to find out the direction of force here. Current is in the direction of middle finger. This one is the current direction on the AB arm. हम AB arm से शुरू कर रहे हैं. AB arm पे current वहाँ पर किस direction में? A to B. So this is the direction of current. And the first finger should be in the direction of magnetic field. तो हमें अपना hand turn करना है. So this is the direction of magnetic field. This, okay? यहाँ पे जो आपका hand है वो वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाना चाहिए. कई बच्चे ऐसे कर देते हैं बाद में ट्विस्टिंग में. अपने हैंड की इतनी एक्सरसाइज करनी है, आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज भी हो रही है कि ये जो हैंड है आपका ये सिंपली इसी मोड में रहना चाहिए, ठीक है. ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए इस तरीके से. सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस वायर पे आपने करंट को शो करना है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द first finger indicates the direction of magnetic field here in the right direction. Then thumb is going inward. So if the thumb is going inward, then the direction of force here is inward direction. ये force का direction हो गया, ठीक है. अब हम आते हैं CD arm पे जो parallel थी इसके, ठीक है. पैरेलल आर्म पे अगर हम यही सेम रूल लगाएंगे तो देखो अब करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है. वो जो थंब हमारा है ये आउटवर्ड टू द बोर्ड आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज अप्लाइड अपवर्ड. सो हियर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपवर्ड. गॉट इट. तो ये जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ये मेरा हैंड देखो रेक्टेंगुलर शेप है. ये जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, इसकी जो दो पैरेलल आर्म्स थी, इसमें एक आर्म में फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और एक आर्म में फोर्स अपवर्ड लग रहा है. ओके, इस तरीके की सिचुएशन है. अब आप ये देखो कि अगर हम BC आर्म लेते हैं या DA आर्म लेते हैं तो क्या होता है. अगर हमने BC आर्म ली सपोज, तो BC आर्म जो लेंथ है दिस इज अलोंग विद द B मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. अब हम यहाँ पर जब रूल लगाते हैं, लॉ लगाते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या आता है IBL साइन थीटा, वेयर वी कैन राइट इट एज B. अभी हमने लास्ट लेक्चर में इन माई लेक्चर नंबर 10 we have discussed this formula. So on the current carrying wire B into IL sin theta. ये जो थीटा है वो एंगल किसके बीच में? करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. तो यहाँ पर देखो तो करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है. इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? करंट एलिमेंट इज BC एंड मैग्नेटिक फील्ड इज B. तो एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर? 0. साइन 0. अगर आप यहाँ एंगल रखो तो साइन 0 इज 0. सो यहाँ पर साइन 0 रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगी, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ B और IL. ठीक है. तो दैट मीन्स वॉट कि फोर्स BC आर्म में लग ही नहीं रहा है यहाँ पर. अगर हम DA आर्म लेते हैं तो DA आर्म D to A है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन. DA आर्म इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन. द एंगल इज वॉट? दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. अगर हम साइन 180 रखते हैं सेकेंड केस में, इसको रख दिया साइन 180, तो साइन 180 इज अगेन 0. अगेन द फोर्स विल कम हियर एज 0 इन द केस ऑफ DA आर्म. तो आप अगर BC आर्म ले रहे हैं और DA आर्म ले रहे हैं तो दोनों के ही केस में फोर्स की वैल्यू 0 हो जानी है. लाइक
अगर हम यहाँ पर इनको ए बी और सी डी आर्म को लेते हैं तो उस केस में आप देखो तो एंगल 90 बन रहा है। दिस इज द आर्म और दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो आर्म एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देख रहे हो यहाँ से, इसको ले जाओ ऊपर, ये कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से सी डी आर्म में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, या आप 270 ले सकते हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में 270 ले लिया। अगेन यू नो दैट 270 के केस में भी यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, दैट वैल्यू शुड बी 90 डिग्री, मीन्स 1 sin 270 is also 1, that is -1, and sin 90 is 1. So in both cases you are getting the value as 1 or -1, indicating that force are opposite to each other. जो force में अगर प्लस साइन या माइनस साइन आ जाता है, ये आ गया पॉजिटिव साइन और ये आ गया आपका नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। और ये यहाँ पर आपको दैट फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करने पे पता चल रहा है कि ए बी आर्म पे डाउनवर्ड फोर्स है और सी डी आर्म पे अपवर्ड फोर्स है। गॉट इट? तो यहाँ तो ये तो फोर्सेस की बात होगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क। टॉर्क होता क्या है, आपने +1 क्लास में पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पढ़ा था आपने। सो ये टॉर्क दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हम यूज करते हैं। एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट का एक मीनिंग होता है, आपको थोड़ा सा रिकॉल कराती हूँ। वो मीनिंग ये है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं इसका, कि ये 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है। आर और एफ जिस भी प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में टॉर्क आएगा। मीन्स ये है कि अगर आर और एफ दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो टॉर्क जेड प्लेन में आएगा। अगर आर और एफ एक्स जेड प्लेन में है तो टॉर्क वाई प्लेन में आएगा। लिसन इट केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आर और एफ वाई जेड प्लेन में है तो टॉर्क एक्स प्लेन एक्स एक्सिस में आएगा। तो ये जो आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर, यानी आप 3 डायमेंशनल में स्पेस में एज्यूम करेंगे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कंसिडरेशन। गॉट इट? तो यहाँ पर अब आप देखो, सबसे पहले तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि अगर आपके पास कोई एक बुक है, दिस वन, चलो मैं ये डस्टर ले लेती हूँ। ये एक डस्टर है, ये आप देख लो, इसको रेक्टेंगुलर शेप का है, लेंथ है इसमें, ब्रेड्थ है। वैसे तो आप स्क्वायर शेप भी लेते तब भी यही सिचुएशन होती। इस पे अगर आप दोनों साइड से फोर्स अप्लाई करोगे, दिस वन, ये मैंने अप्लाई किया फोर्स एग्जैक्टली एट द मिडिल। आप देख लो ऊपर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे से भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। यहाँ पर सेम पॉइंट ऑफ एक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस केस में ये बॉडी एज सच स्टिल हो जाएगी इफ द बोथ फोर्सेस आर सेम। हो रहा है ऐसा, ये बॉडी स्टिल है। गॉट इट? क्लियर है ये? अब इसको मैं देखो दूसरे केस में ले रही हूँ, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा। एक मैंने इधर अप्लाई किया, दूसरा मैंने इस साइड में अप्लाई किया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला फोर्स है और एक ये जो नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है, ये बॉडी को नीचे की साइड रोटेट कराएगा, नीचे की साइड मूव कराएगा। आपने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग्स में एनी बॉडी मस्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वो बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा, और जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है वो बॉडी को ऊपर की साइड में मूव कराएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स ले लेती हूँ। ये डायरेक्शन शो कर रहा है जो इसका पॉइंटर है, पॉइंट, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया दिस वन। तो अब देखो क्या होगा, पॉइंटर डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसका पॉइंटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका पॉइंटर नीचे वाले मार्कर का पॉइंटर ऊपर की डायरेक्शन में है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी पे, ये बॉडी रोटेट करेगी। डिसबैलेंस हो रहा है थोड़ा सा, बट ये बॉडी रोटेट करेगी। लाइक इन द केस अगर मैं पॉइंटर ना भी लूँ तो इस तरीके से फोर्स अप्लाई अगर होता है तो ऊपर वाला फोर्स इसे नीचे पुश कर रहा है और जो नीचे वाला फोर्स है इसे ऊपर पुश कर रहा है, तो बॉडी रोटेट हो रही है। यानी बॉडी का रोटेशन उस केस में होता है जब पॉइंट ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं। इसको हम कपल कहते हैं।
कपल ऑफ फोर्सेस का मीनिंग है इक्वल फोर्सेस हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन अलग है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये कपल ऑफ फोर्सेस क्या करेंगे कि इस बॉडी को रोटेट कराएंगे। जो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में बॉडी को ऊपर उस साइड को ऊपर ले जाएगा और दूसरा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो बॉडी को कि उस पोर्शन को नीचे की साइड ले जाएगा। तो ओवरऑल ये बॉडी रोटेट करती है। यही कॉन्सेप्ट आपने टॉर्क में भी पढ़ा था कि अगर ये पॉइंट जो एक्सिस है वो सिंगल एक्सिस भी है, एक ही पॉइंट है, तो इस बेसिस पर भी बॉडी रोटेट हो सकती है। क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस से डिफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मेरी फिंगर यहाँ एकदम एग्जैक्टली सेंटर पर है और मैंने इस मार्कर को इस डस्टर को मैंने एक साइड से रोटेट कराया। चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मैंने इसको क्या किया, एक साइड से ऐसे रोटेट कराया। तो पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है मेरा, यहाँ पर जहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ये तो एक्सिस हो गया, दिस वन इज एक्सिस। और पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा, ऐसे रोटेट कराएगा बॉडी को जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस वन इज पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ये इस डस्टर को रोटेट कर रहा होगा। तो टॉर्क जो होता है वो दोनों ही केसेस में अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिंगल एक्शन है, सिंगल फोर्स है जो बॉडी को रोटेट करा रहा है, ठीक है, जहाँ पर एक्सिस बना हुआ है उसके अदर साइड में। और यहाँ जब मैंने पहले वाली सिचुएशन दिखाई थी वहाँ पर क्या हो रहा था कि ये फल्क्रम पॉइंट हो जाता है, सेंटर पॉइंट, और जो कपल ऑफ फोर्सेस हैं वो कॉर्नर्स पे अप्लाई हो रहे होते हैं जो बॉडी को रोटेट करा रहे होते हैं या वर्टिकल मोशन करा रहे होते हैं। इस तरीके से वर्टिकल रोटेशन, दो तरीके से रोटेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इट डिपेंड्स ऑन द फल्क्रम और एक्सिस ऑफ रोटेशन। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने पहले से क्लासेस में पढ़े हैं और जो अभी आपके यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। सो सेम इज द केस हियर। ये जो दो फोर्सेस हैं, क्योंकि लेंथ ए बी आर्म की और सी डी आर्म की लेंथ इक्वल है, यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन किया था लेंथ इक्वल है, तो क्या होगा कि लेंथ इक्वल है, एल इक्वल है, जो फॉर्मूला मैंने पहले लिखा हुआ था, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इस फॉर्मूले को देखो, लेंथ दोनों की इक्वल है, इक्वल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ये दोनों आर्म सेम मैग्नेटिक फील्ड में है और इक्वल करंट भी फ्लो कर रही है। यहाँ पर ए बी आर्म में जितनी करंट है उतनी ही करंट सी डी आर्म में है, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो कर रही है, इसलिए दोनों को जो फोर्स अप्लाइड है वो सेम होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम बट द डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो दे आर फॉर्मिंग अ कपल। और इनका पॉइंट ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। यहाँ पर देखो, तो इस एफ का पॉइंट ऑफ एक्शन ए बी आर्म में है, तो इस वाले एफ का पॉइंट ऑफ एक्शन सी डी आर्म में है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग हो गए। तो कौन सी सिचुएशन एक्ट करेगी, जो डस्टर के दो साइड में कपल फोर्सेस एक्ट करते हैं, यानी ये बॉडी अब रोटेट करना शुरू करेगी इस तरीके से, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट करना शुरू करेगी। सो दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल स्टार्ट मूविंग हियर इन दिस मैनर। ऊपर वाले फोर्स की डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेगी और इस तरीके से मूव करती चली जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर उसके बेसिस पर हम टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो टॉर्क निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा का फॉर्मूला। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, ये बेसिक थ्योरी थी टॉर्क की, कैसे जनरेट हो रहा है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें तो थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर, ओके। अब एफ एंड आर में अगर देखो, सो दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर आ रहा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी के अलाउंग पे ये कॉइल रोटेट करने वाली है, सेंटर से इस तरीके से रोटेट करने वाली है। दिस वन ये ऐसे है, तो ऊपर वाला फोर्स की साइड वाला पोर्शन, ये पोर्शन ऊपर जाएगा ऐसे, और इधर नीचे वाले फोर्स की साइड वाला पोर्शन अंदर जाएगा, इस तरीके से रोटेट करने वाली है। गॉट इट। अब ये जो रोटेट करने वाली है, तो दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ओके। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया। सो जो यहाँ इस फॉर्मूले में होता है, यहाँ पे आपने ये फिगर देखी होगी 11th क्लास में, जो पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पर देखो, एक्सिस है ये O पॉइंट और ये है P पॉइंट ऑफ एक्शन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स और ये जो डिस्टेंस होती है, दिस इज R डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक की। तो इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा होता है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। गॉट इट। यहाँ जो इस फॉर्मूले में थीटा है। अब यहाँ पर इस थीटा को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ले लेते हैं। फर्स्ट फोर्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, BC आर्म का हाफ। तो BC आर्म को हमने लिया था L, सो दिस इज L/2 एंड सेकेंड फोर्स की भी ऑब्वियसली L/2 आएगी, ओके। नाउ व्हाट इज द एंगल हियर इन दिस सिचुएशन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस।
समझ रहे हो? तो ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ये L/2 डिस्टेंस कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये O पॉइंट ले लो। सो हॉरिजॉन्टल लाइन में है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है। ये बोर्ड के अंदर की साइड अप्लाई हो रहा था, ये बोर्ड के बाहर की साइड अप्लाई हो रहा है। तो बोर्ड के अंदर और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एक लाइन है जो बोर्ड के अंदर जा रही है और एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। सो हियर इन दिस फॉर्मूला वी कैन प्लेस द थीटा एज 90 डिग्री इन दिस सिचुएशन, जब कॉइल स्ट्रेट अवे थी, सेम इसी पोजीशन में थी। सो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इंटू आर। और F इंटू आर में अगर वैल्यू देखो तो फर्स्ट फोर्स के लिए जो वैल्यू आएगी दैट इज F इंटू आर के प्लेस में हम रख देंगे L/2। दिस इज टॉर्क ड्यू टू AB पोर्शन, दिस इज ड्यू टू ABR। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं टॉर्क टाउ डैश रख लो। तो इस केस में अगर टॉर्क देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की वैल्यू सो F मल्टीप्लाइड बाई L/2 इस केस के लिए भी होगा डिस्टेंस। सो दिस इज ड्यू टू CDR, ये वैल्यू होगी। सो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? टाउ नेट दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर टॉर्क जो होता है वो हमेशा किस साइड में अप्लाई हो रहा होता है? इस फॉर्मूले में मैंने बताया कि टॉर्क का डायरेक्शन फोर्स और डिस्टेंस दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस में आता है। तो फोर्स आपका अंदर की साइड वाले प्लेन में था, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आई है ये एक्स एक्सिस में है। तो इट इज श्योर कि जो टॉर्क आ रहा होगा वो आपका वाई एक्सिस में कहीं आ रहा होगा। तो इस बेसिस पर यहाँ जो टॉर्क है दिस इज दिस वन, ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक्सिस डायग्राम बना देती हूँ। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस तो अंदर की साइड चला गया, यानी फोर्स जेड एक्सिस में वर्क कर रहा है। ये जो L/2 लाइन है ये एक्स एक्सिस में वर्क कर रही है। तो आपका जो ये टॉर्क है वो किस एक्सिस में वर्क करना चाहिए? वाई में, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस ये दोनों किस प्लेन में आते हैं? एक्स जेड प्लेन में। तो टॉर्क की वैल्यू किस प्लेन में आनी चाहिए? वाई प्लेन में। गॉट इट? तो अब यहाँ पर अगर हम इस नेट टॉर्क को निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू टाउ प्लस टाउ डैश। नेट टॉर्क हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, एंड इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2। सो यू विल गेट इट एज F इंटू L, L/2 ऐड हो गया। गॉट इट? तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें आप चाहो तो F की वैल्यू को अप्लाई कर सकते हो। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F? ये जो फोर्स था ये किस पर अप्लाई हो रहा है? दिस फोर्स इज ऑन द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला आपने रखा था F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, वेयर थीटा इज 90 डिग्री, वो मैंने पहले प्रूव कर दिया था। F की वैल्यू होती है IBL। यहाँ पे टाउ नेट कितना हो जाएगा? दैट इज IBL। L क्या है? द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, AB आर्म की लेंथ। AB आर्म की लेंथ कितनी है? दिस इज B, सो वी विल राइट इट एज B, IBB, ठीक है। L ही रखना है, ओके। आप यहाँ पे देखो लेंथ क्या होती है करंट कैरिंग वायर की, तो AB आर्म की लेंथ हमने कितनी दी हुई है? B, सो IBB इनटू कितना है? L, सो दिस इज L, सो इट विल कम एज IB। BL को आप क्या लिख सकते हो? ब्रेड्थ इनटू लेंथ, दैट इज इक्वल टू एरिया। A इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो IB इनटू एरिया, इट कैन बी रिटन एज IA इंटू B। ये जो क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है यही यहाँ पर एक आप समझ लो कि थीम फैक्टर है, मेन फैक्टर है। ये IA आ गया। IA है क्या? करंट एंड एरिया का मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हो? एरिया और करंट, एरिया किसका? रेक्टेंगुलर कॉइल का, और करंट किसमें? रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट, ओके। तो ये एक जो मल्टीप्लाई हो रहा है करंट और एरिया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है। किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी बना रहा है इसको समझो। अब स्पीकर को अभी मुझे रब नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ ये पोर्शन नहीं ले रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। I जैसे आपने लिया था I इंटू L, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, पढ़ा था आपने। और करंट एलिमेंट जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है,
हमने क्या किया, करंट को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट एलिमेंट कहलाता है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब करंट एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है I इंटू ए, तो करंट अगर एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहा होगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी जो बन रही होगी वो एरिया वेक्टर के अलोंग विद होगी। एरिया तो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज, रिमेंबर दिस, in the direction of area vector। अब एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो। एरिया वेक्टर कहाँ होता है, कोई भी एरिया उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये जो कॉइल का एरिया है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जो ये आई ए क्वांटिटी है, अभी मैं इसको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ उसका टर्म, आई ए क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। दिस इज द न्यू क्वांटिटी आई ए, और इसको हम कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम इंटू बी। सो व्हाट इज एम? नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एम, which is equal to IA, is called magnetic dipole moment, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड एम। यानी एक करंट कैरिंग वायर के साथ में अगर दूसरा करंट कैरिंग वायर लगा हुआ हो तो वो दोनों एक डाइपोल बना रहे होते हैं। सिंगल करंट कैरिंग वायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में। और आपने पैरेलल वायर का केस, एक इनफाइनाइट पैरेलल वायर का केस भी पढ़ा है मेरे लास्ट लेक्चर में। तो इसमें क्या है कि दिस वन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मतलब क्या होता है, हैविंग टू पोलैरिटी। तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ होती है कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है दिस बिहेव्स लाइक अ डाइपोल, ओके। इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मैग्नेटिक डाइपोल जहाँ कहीं भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसका मीनिंग यही होता है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक डाइपोल को शो कर रहा है जिसमें दो पोलैरिटीज हैं, और वो दो पोलैरिटीज कौन सी हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है रिगार्डिंग विद द मैग्नेट, ओके। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें करंट है और ये एक कपल फॉर्म कर रही है, गॉट इट। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू आ जाती है एम इंटू बी। और यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो कोई भी आप सरफेस ले रहे हो जिसमें एरिया है, उस सरफेस के हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर आएगा, गॉट इट। ये आपने किसी भी केस में भूलना नहीं है। अगर आप ले रहे हो एक सर्कुलर कॉइल, तो सर्कुलर कॉइल के भी एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन भी ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन का जो भी डायरेक्शन है उसी के कोरस्पॉन्डेंस में उसका जो एरिया बन रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, उस ऑर्बिट के परपेंडिकुलर होगा डाइपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जब आप आगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो स्टार्क इफेक्ट होता है, ज़ीमान इफेक्ट होता है, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ये डिपेंड किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। So magnetic dipole moment is the similar name which we have used as in the case of electrostatic। आपने वहाँ पे क्या यूज किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वहाँ पर फॉर्मूला क्या था, P is equal to Q into 2L, ये फॉर्मूला था। इसको P को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द फॉर्मूला इज Q into 2L। Here this is called magnetic dipole moment and the formula is IE। देख रहे हो डिफरेंस, इसमें फॉर्मूले में ही डिफरेंस है, नेमिंग सेम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ओके। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस P is opposite to the direction of applied field, this M is perpendicular to the direction of applied field, or you can say always perpendicular to the area of that magnet, okay। So this rectangular coil behave like a magnet and this magnetic dipole moment is perpendicular to this area along with the area vector। तो area vector जो भी आता है उसी के along with होता है magnetic dipole moment।
तो आई होप कि ये पॉइंट आप कहीं भी भूलोगे नहीं, इसको अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लो। इसको आपने कभी भी अपने माइंड से स्किप नहीं करना है, चाहे कोई भी केस दे दे, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर दे दे, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर शेप की हो, किसी भी शेप की कॉइल हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। ओके, सो दिस इज द बेस थीम। इसको नोट कर लिया होगा आपने, अगर नोट नहीं किया है तो पॉज करके इसको नोट कर लेना। सो टाउ इज इक्वल टू एम बी आ गया, ठीक है। ये तो केस सिंपल था। अभी मैंने ये फिगर रख नहीं की क्योंकि इस फिगर का यूज़ है, मैंने आपको बताया। ये आप देख रहे हो कि एम एन पॉइंट हम इसे ऐसे अब ले रहे हैं। आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया, उस फॉर्मूले को मैं यहाँ रख दे रही हूँ, टाउ इज इक्वल टू एम इंटू बी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल के केस में आता है, वेयर एम इज इक्वल टू आई ए, जहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एक सिंगल टर्न की कॉइल बनी है, तो m इज इक्वल टू आई ए है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए इस कॉइल में, एक कोर बना करके, एक आयरन की कोर बना के उसके ऊपर क्या किया जाए, कॉइल की रैपिंग करते जाएं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, m इज इक्वल टू एन आई ए। आई ए इज कोरस्पॉन्डिंग टू वन कॉइल, तो n क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस केस में n टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आप n भी यहाँ पर यूज कर सकते हो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। सो दिस वन इज द फॉर्मूला व्हेन द कॉइल इज सिचुएटेड इन सच अ मैनर दैट द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर है ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो mn लाइन थी, इसी को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, दिस वन इज mn लाइन, एंड रिमेंबर दिस mn line is parallel to BC line, ठीक है, BC लाइन के पैरेलल है, तो mn लाइन की लेंथ जो होगी वो भी l ही होगी जितनी BC लाइन की है। यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जहाँ हम इस तरीके का सिंबल बना देते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करता है। जब ये कॉइल जो होगी टर्न कर जाएगी, ठीक है, कुछ एंगल पे टर्न कर गई और इस तरीके से टर्न की कि जो एरिया वेक्टर था वो पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर था, लेकिन जब टर्न की तो एरिया वेक्टर, या हम डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, मैंने आपको बताया क्या कि डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अलोंग विद द एरिया वेक्टर। ये इसलिए मैंने कहा आपसे कि इसको स्टोर कर लो अपने माइंड में। सो जो भी डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होगा। तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। लेकिन जैसे ही ये कॉइल रोटेट करना शुरू करेगी तो किसी एंगल पे रोटेट हो जाएगी इन सच ए मैनर कि नाउ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकम थीटा। वो कहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर है, वो ऐसे रोटेट कर गया। तो अब अगर हम इस फिगर में बनाना चाहें तो ये आपका क्या था कि दिस वन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग विद आ गया। यहाँ पे ये कॉइल है, ये कॉइल का पोर्शन रोटेट कर दिया है कुछ एंगल पर, और इस तरीके से रोटेट किया कि मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, वो एन टू ऐसी मूव करी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसी डायरेक्शन में है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो किसी एंगल पे रोटेट कर गया है, वो सपोज इस एंगल पे रोटेट कर चुका है और वो एंगल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। सो m और b के बीच में थीटा डिग्री एंगल हो गया। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि नहीं? यहाँ पे देखो, दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल पहले क्या थी, कॉइल का जो सरफेस एरिया था वो मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग विद था। जब ये कॉइल रोटेट करना शुरू की, ये ऊपर देखो, एक फोर्स ऊपर जा रहा है, यानी कि ये इधर की साइड जा रहा है, एक पोर्शन, एक आर्म ऊपर जा रही है, एक आर्म नीचे जा रही है, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर थी, अब क्या हो गई, आर्म रोटेट कर गई। तो आर्म रोटेट करने पे ये एंगल थीटा नहीं बन रहा है, ये तो स्ट्रेट अवे थी, दिस एंगल इज नॉट थीटा। एंगल किसके बीच में थीटा मैं बता रही हूँ कि ये जो नॉर्मल वेक्टर था इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो हो रहा है वो थीटा बन रहा है। सो दिस दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि दिस वन इज थीटा, ओके। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉइल है, दिस वन इज अ कॉइल, इस कॉइल को मैं BC नेम दे रही हूँ। ये कॉइल जब रोटेट की है तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो तो रोटेशन के साथ में रोटेट करता जाएगा, वो हमेशा कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो रोटेट कर गया,
तो दैट मीन्स व्हाट कि ये जो C और ये O एंड M ये टोटल एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एरिया के परपेंडिकुलर डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? COP, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा। क्यों? टोटल एंगल 90 था और ये एंगल थीटा है, तो ओवरऑल ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। नाउ इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। अब आप क्या करोगे कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यू निकालनी है कि आर्म की वैल्यू कितनी हो गई। दिस आर्म इज L/2। अगर ये L/2 है और हम यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर दें, ये पूरी लेंथ L/2 की थी, दिस वन, ये कॉइल की, आप ये देखो, ये जो कॉइल है MO की लेंथ है, MO की लेंथ L/2 है, यहाँ पर MO की लेंथ इक्वल टू B फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, तो ये कितनी होगी? L/2। तो ये L/2 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बेस लाइन? ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो जो बेस लाइन है दैट इज MO, दिस शुड बी इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूज, दैट इज OB मल्टीप्लाइड बाई cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। क्यों? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 90 माइनस थीटा। नाउ cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? sin थीटा। सो दिस इज sin थीटा। नाउ OB कितना होना चाहिए? दिस OB शुड बी L/2। सो MO की वैल्यू कितनी हो गई? L/2 sin थीटा। गॉट इट? अब ये तो MO की वैल्यू हो गई। अब आप जब टॉर्क इस केस में निकालोगे जब कॉइल थीटा डिग्री एंगल रोटेट कर रही है, ओके, तो इस तरीके से रोटेट की कि मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। देन व्हाट शुड बी द टॉर्क? देन टाउ नेट इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2, जैसे पहले किया था। F इंटू L आया था, L की जगह पे क्या रखा था? L/2। अब L/2 की जगह पे क्या रखोगे? L/2 इंटू साइन थीटा। पहले खाली L/2 था जब यहाँ पर स्ट्रेट अवे थी कॉइल, अब तो कॉइल रोटेट कर चुकी है, सो दैट इज व्हाई दिस इज L/2 sin थीटा एंड सेकंड केस F L/2 sin थीटा। सो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? FL, इन दोनों को ऐड अप कर दो, FL इंटू sin थीटा, दिस इज टाउ नेट। F इज इक्वल टू IAB, ये पहले ही हमने पहले जैसे रखा था वैसे ही रखा है। यहाँ पर IBL होता है, सो दिस वन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IBB यानी IBL, और यहाँ पे ये sin थीटा एज सच। सो दिस इज टाउ नेट, ओके। नाउ टाउ नेट की वैल्यू अगर इतनी आ रही है तो आप इसमें टर्म्स ले लो, इंटू L, ये रह गया L। सो IBL को आप लिख सकते हो OA एंड दिस इज B sin थीटा। ये BL क्या है? ब्रेड्थ इंटू लेंथ एज सच। यहाँ L/2 था, वो L हो गया था। L इंटू B जो आया है दैट इज A, एंड I इंटू A को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो अभी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, M इंटू B इंटू साइन थीटा, दिस इज टाउ नेट। सो दिस वन इज द फॉर्मूला वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन M एंड B। रिमेंबर दिस फॉर्मूला जो आता है आपका उन्हीं की टर्म्स के बीच में ही एंगल है, तो वो वहाँ पे फिगर में वही देना था आपको। सो M इंटू B इंटू साइन थीटा, और वी कैन राइट इट एज टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। जब साइन थीटा आता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रख सकते हैं, दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। सो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, and remember this magnetic dipole moment is always perpendicular to area, or you can say magnetic dipole moment is always parallel to area vector। एरिया और एरिया वेक्टर में डिफरेंस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, बहुत ज़रूरी है कि उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूटिलाइज करना, उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना, ठीक है। सो एरिया वेक्टर, दिस वन, एरिया वेक्टर इज अलोंग विद दिस पेन, दिस मार्कर, ये एरिया अगर है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, एंड डाइपोल मोमेंट हमेशा एरिया वेक्टर के एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के पैरेलल। रिमेंबर दिस, एरिया के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर के पैरेलल, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर,
ओके, एंड यू हैव गॉट द लास्ट रिजल्ट टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस p और mv sin थीटा। कुछ याद आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा ही टॉर्क आया था, क्या था फॉर्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया था टाउ इज इक्वल टू pe sin थीटा। देखो सारी रिजेम्बलेंस होती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, और इसीलिए मैंने आपको पहले से सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी बता चुकी हूँ जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये यूनिट स्टार्ट की थी उसी समय। तो यहाँ पर देखो तो सारे टर्म्स भी रिजेम्बलेंस में आ रहे सारे फॉर्मूले, pe sin थीटा, mv sin थीटा, दिस इज mv sin थीटा, दिस इज pe sin थीटा। सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर कॉन्सेप्ट, डिफरेंस इज व्हाट? वहाँ पे मैग्नेटिक, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोनोपोल भी होता है, यानी सिंगल चार्ज भी होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों होते हैं, और इस चीज़ को भी हम प्रूव करने वाले हैं आगे, ठीक है। सो हियर दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क m क्रॉस b और इट इज mv, एंड इन प्लेस ऑफ m you can place ia or nia. It depends on whether you are taking a single turn or n number of turns in the coil. ओके, जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, यहाँ पे सिंगल टर्न था इसलिए IA था। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स किसी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वहाँ पर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी क्वांटिटी थी m दैट इज मोर क्लियर टू यू, और ये जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट है ये भी, ये फिगर आप सिंपल जितनी बनाओगे उतना अच्छा है, कोई 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो आप सिंपल फिगर बनाओ, बट फिगर को अंडरस्टैंड प्रॉपरली करो, उसको इमेजिन करो। सो दिस इज ऑल इन दिस टॉपिक। वी विल नाउ गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वी विल प्रूव दैट सर्कुलर लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली और इसमें करंट कैरिंग वायर भी है, दिस ए बी एंड सी डी आर करंट कैरिंग वायर भी है, तो हमने करंट कैरिंग वायर का केस लिया, उसको हमने प्रूव किया कि इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि m इंट्रोड्यूस हो रहा है, m आ रहा है इसमें। अब हम इसमें प्रूव करने वाले हैं यही चीज़। ओके, सो कीप विथ मी, आई एम कमिंग हियर इन फ्यू सेकेंड्स। Start with a new topic, that is circular loop, keeping the previous concept in mind. So सर्कुलर लूप का आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था कि एक सर्कुलर लूप के बेसिस पर किसी भी पॉइंट P पर अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये O है, दिस वन इज X, दिस वन इज R, दिस इज A, ठीक है, इतना आपने लिया हुआ था। आपने P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी उस फॉर्मूले को जरा रिकॉल कर लो, म्यू नॉट I इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज A स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल 3/2। ए लिया रेडियस, जहाँ पे R लेते वहाँ R आ जाता है। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये आया था। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड को ही हम कन्वर्ट करके देखेंगे, क्योंकि हम पिछले टॉपिक में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसमें अगर इस फॉर्मूले में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो सर्कुलर लूप है वो भी एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। दैट मीन्स ये डाइपोल है। मैग्नेट में क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल होती है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होती है। अभी इसके आगे मैं ये इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ कि वो डाइपोल कैसे, उसमें नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। सो वो हम प्रूव करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप ये सिचुएशन लो कि दिस पॉइंट P इज एट वेरी फार पॉइंट, फार डिस्टेंस, बहुत दूर होगा तो क्या होगा, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ये केस हमने लिया था, दो केसेस लिए थे कि जब पॉइंट सेंटर पे हो, वो पर हो, और ये लिया था कि पॉइंट बाहर फार डिस्टेंस पर है। तो अगर ये सिचुएशन होती देन वी कैन टेक b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया x क्यूब। a को मैंने हटा दिया, निगलेक्ट कर दिया, बिकॉज इट इज द सिचुएशन। x स्क्वायर एंड 1/2 ये कैंसिल होगा और यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो अब पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से डिवाइड कर दिया, क्यों किया वो बताती हूँ। पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड,
क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले में कि डाइपोल मोमेंट आने वाला है कि नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का जो फॉर्मूला होता है वो अपने माइंड में रखो, दिस इज आई ए और एन आई ए फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। सर्कुलर लूप में भी एन नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई ए। ठीक है, अब यहाँ पर आई ए लाने के लिए एरिया तो हमें चाहिए, और एरिया जो सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है या पाई ए स्क्वायर होता है अगर ए रेडियस लिए तो एरिया यहाँ पर तब आएगा जब हम पाई लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर पाई लगाते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए, एरिया हो गया, हियर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स क्यूब। नाउ b इज इक्वल टू 2 से और मल्टीप्लाई कर दो इसे तो 4 पाई टर्म बन जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई ए को m कर दूँ, अब मैं ये फॉर्मूला है, सो ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये हो गया फॉर्मूला, आ गया जहाँ पर m आ गया वहाँ पे हमने छोड़ दिया। मास यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, मीनिंग कि ये जो सर्कुलर लूप है ये एक मैग्नेट है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा तो मैग्नेट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। और इस फॉर्मूले की रिजेंबलेंस करो, अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में, एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन आपने पढ़ी है, एक्सियल या इक्वाटोरियल व्यू से कहा जाता है, उसमें आया था 2p ओवर एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला आया था। सेम सिचुएशन है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है, ये मैग्नेटिक डाइपोल के लिए है। ठीक है, तो ये सिचुएशन अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है, दिस इज नॉट म्यू नॉट ओवर 4 पाई, सॉरी, दिस इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर एक्स क्यूब। तो ये सिचुएशन अगर रिजेंबल करो तो देखोगे कि आपको दोनों टर्म्स सेम लगेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, एक सिस्टम बन सकता है प्लस और माइनस चार्ज का फॉर द इक्वल वैल्यू। ठीक है, ऑन ऑपोजिट इन साइन। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल भी बन सकता है विद 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। सो दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो इट प्रूव्स दैट सर्कुलर लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, so that is all here in this topic, proof of circular loop in the magnetic dipole। पर अब मैं एक बहुत ही important point बताने वाली हूँ, वो आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लो। मैं आपको डिक्टेट करूँगी वो पॉइंट, और ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हेडिंग लिख करके आप उसको नोट डाउन करो। सबसे पहला पॉइंट ये कि मैग्नेटिक डाइपोल तब बनता है, इसको आप पहले अच्छे से समझ लो फिर नोट करना। मैग्नेटिक डाइपोल तब बनता है जब क्लोज्ड लूप होता है, वेदर ऑफ एनी शेप। जो रेक्टेंगुलर कॉइल ली थी हमने, वो रेक्टेंगुलर कॉइल भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर था। ठीक है, जब भी मैंने अभी टॉर्क प्रूव किया, तो जब एक क्लोज लूप होता है, अगर आप कह दो सिंगल स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक डाइपोल आप उसको प्रूव कर दोगे तो आप नहीं प्रूव कर पाओगे। ठीक है, वो उसमें आप देखो तो रेक्टेंगुलर कॉइल में भी स्ट्रेट वायर था, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, लेकिन 2 स्ट्रेट वायर हैं जो कि आपस में एक क्लोज लूप में बाउंड है, ए बी एंड सी डी आर्म। ठीक है, सो दैट इज वाई वी कैन से कि मैग्नेटिक डाइपोल की एग्जिस्टेंस तब आएगी जबकि क्लोज लूप होगा करंट कैरिंग वायर में। मैग्नेट एक क्लोज स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा सोर्स करंट कैरिंग वायर होता है, और वो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। तो वो किस केस में बिहेव करता है, तो एक करंट कैरिंग वायर या मूवेबल चार्ज एक मैग्नेट की तरीके से तब बिहेव करेगा जबकि वो क्लोज्ड लूप बना रहा होगा, लाइक द केस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, लाइक द केस ऑफ दिस circular loop. So you can now note down that any closed current carrying loop, any closed current carrying loop may form a magnet. Okay, ये पहला पॉइंट है। कोई ओपन स्ट्रक्चर मैग्नेट नहीं बनाएगा, क्लोज होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सो एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप may form a magnet, फर्स्ट थिंग। ओपन होगा तो नहीं मैग्नेट बनेगा। सेकेंड पॉइंट आप लिखो उसमें, दैट वॉट एवर बी द क्लोज लूप, द वन साइड ऑफ द क्लोज लूप इज द वन पोल, यानी नॉर्थ आप ले सकते हो, एंड द सेकेंड साइड ऑफ दैट लूप बिहेव लाइक अ साउथ पोल।
यानी अगर आपने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है तो ये अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल के दो फेसेस हैं, एक ये फेस है और एक ये फेस है। तो जो दो फेसेस हैं उन दोनों फेसेस के एक फेस को हम कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल है और उसका दूसरा फेस साउथ पोल है, ठीक है। और इसको भी हम लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल आएगा कौन सा साउथ पोल आएगा। बट इट इज़ श्योर कि जो भी आप क्लोज लूप ले रहे हो, चाहे उसमें जितने भी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, उसका एक फेस नॉर्थ बनता है दूसरा फेस साउथ बनता है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमने ऐसे ली थी उसका बाहर वाला फेस अगर नॉर्थ है तो पीछे वाला फेस साउथ होगा। उसी तरीके से ये सर्कुलर लूप का अगर एक फेस इधर वाला फेस नॉर्थ है तो दूसरा फेस साउथ होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो क्लोज लूप ले रहे हैं दैट वॉट एवर विद द क्लोज लूप the one face behave like a north pole and the other face behave like a south pole. That is why it is a magnet. Okay? आपको प्रूव करना है। मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैग्नेट फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से मैग्नेट फॉर्म हो रहा है, तो उसका एक फेस नॉर्थ होता है तो दूसरा फेस साउथ होता है। गॉट इट? तो ये दो मेजर पॉइंट हैं जिसमें आप ये प्रूव कर सकते हो कि करंट कैरिंग वायर जो होता है वो लूप अगर बना लेता है, क्लोज लूप बना लेता है, तो एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर सकता है। वॉट एवर भी द शेप, आप उसको स्टार शेप दे दो, आप उसको इरेगुलर शेप भी दे दो, इरेगुलर भी अगर होगा तब भी वो मैग्नेट बना रहा होगा, लेकिन क्लोज होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। गॉट इट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बिकॉज I wanted to cover up this third topic MCG in this lecture, but it is not possible today. So I will come in my next video with this topic MCG, because today the lecture is so much lengthy and you will get bored with this more and more topic and more concept, deep concept. So that is why I am going to finish my topic up to the second point, and in my next lecture very soon I will come with the third topic MCG. Along with this I will take one more topic, that is the orbital motion of electron, and every atom behave like a magnet. Got it? So that will also be very interesting. I will come soon to meet you. Thank you.